Hi everyone, welcome all of you on my YouTube channel Learn with Nakhar. So in this video I am going to tell you all the process of EPFO portal, like how can you file e-nomination in the EPFO portal. EPFO, which means Employees Provident Fund Organization. So on that portal you need to register, and then further processes I will be showing to you how you can do it. And this is mandatory for all the employees, those who are working, and you must have heard about it, and also you must be getting emails every day, like to do it as soon as possible from Cognizant or in whichever company you are working. It is not just limited in Cognizant only, anybody can do it. Okay, so this video is helpful for all the others, those who are working, right? So let's get started. तो इस वीडियो को मैं हिंदी में करने का सोच रही हूँ बिकॉज़ ये सबके लिए यूज़फुल होगा, नॉट जस्ट बिकॉज दी कॉग्निजेंट एम्प्लॉय और समथिंग, बिकॉज मुझे आ रहे थे कि आप बस इंग्लिश में ही क्यों बोलती हो, हिंदी में भी बताया करो. तो ओके, आई विल डू बोथ द लैंग्वेजेस. एंड मुझे ये अपने मोबाइल से पकड़ के और ये वीडियो बनाना पड़ा. यू नो व्हाट हैपेंड टुडे. आई थॉट एक्चुअली माय पर्सनल लैपटॉप इज़ नॉट having me with myself right now due to some purpose, and I don't have other laptops and all, so I have just my Cognizant's laptop, which is my for my working purpose. So in this laptop I cannot do my personal work. Okay, because there are so many things which is restricted and prohibited, I cannot do. So but today I thought at least I should give it a try. Like I will, obviously I know the limitation, what should we share, what should be not and all. So due to being in that boundary only I would be sharing. I thought like that, and I thought at least let me see if I'm able to download OBS Studio or something, the software through which we can record videos with screen recording in for my videos, to show you people like how you can do the process and all. So I installed it, I downloaded it. It was successfully downloaded, but when I tried to install in my system, so some pop-up message came. Let me show you, 1 minute. So see, here you can see that even after downloading it, some notification is like this executable has been blocked by IT support. If this application is required for business purpose, please raise a request from Vansi portal with valid business justification. Okay, so you cannot do for your personal purpose, only if and only if you are doing it for business purpose. So we are not allowed to do, we are not allowed to download any other software, any other, we are not allowed to do. Even doesn't matter you are going to upload it anywhere, or you are doing for your self studies or something, you are not allowed to download. So okay, I will not stretch in this video because this is dedicated to for the process of EPFO. So I will make a separate video of it, like what can you do in your company's laptop, and what are the things you cannot do for security reason. Okay, so okay, I'll show you the process now of the EPFO. एंड ऑब्वियसली ये वीडियो बनाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा बिकॉज मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके ऐसे आराम से तो बता नहीं पाऊँगी, बिकॉज आई एम होल्डिंग फ़ोन विद माई वन हैंड, एंड विद माई अनदर हैंड आई विल बी स्क्रॉलिंग डाउन एंड फिलिंग द फॉर्म्स टू शो यू गाइज. तो आई होप आप लोग मेरी मेहनत को, मेरी डेडिकेशन को सपोर्ट करोगे, बिकॉज इट टुक सम काइंड ऑफ एफर्ट्स टू डू इट फॉर मेकिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज़, बट आई होप फॉर द बेस्ट, एंड आई थिंक ये आप लोगों को यूज़फुल होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले प्रोसेस क्या है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है. लाइक लेट मी स्क्रॉल डाउन, ऑल द डिटेल्स एंड ऑल यू कैन जस्ट लुक एंड सी. ऑब्वियसली यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, EPFO पोर्टल पे जाओगे, आप ओपन करोगे, एंड वहाँ पे यू विल गेट ऑप्शन एक्टिवेट UN. UN इज़ नथिंग बट यूनिक एक्टिवेट नंबर समथिंग. आई थिंक इसका फुल फॉर्म ऊपर में भी दिया हुआ है. अच्छा, यूनिवर्सल, सॉरी, universal account number, sorry for it, universal account number which is UN member portal.
तो ये आप अगर आपने ऑलरेडी एक्टिवेट नहीं करा हुआ है, आप यू डोंट नो कि आपका यूएएन नंबर क्या है, तो आप इस पोर्टल पे जाके डायरेक्टली उसको ले सकते हो और एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक भी करोगे ना तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू अनदर पेज, अनदर वेब पेज, एंड वहाँ से आप अपना यूएएन लेके उसको एक्टिव कर सकते हो। और ये आपको किसी को दिखाना नहीं है, बताना नहीं, लाइक ऑब्वियसली ये आपका सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यू कैन नॉट शो टू एवरीबडी। तो अच्छा, लेट मी क्लिक एंड सी वेयर आई एम रीडायरेक्टेड। ओके, तो जैसे ही मैंने उस लिंक पर क्लिक करा मैं इस पेज पे रीडायरेक्ट हो गई, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई ईमेल नहीं आया, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर नॉट कॉग्निजेंट एसोसिएट, अगर आप कॉग्निजेंट में वर्क नहीं कर रहे हो या ऐसा आपको कोई ईमेल नहीं आया बट स्टिल आपको यूएएन नंबर जानना है या एक्टिवेट करना है और आपको ईपीएफओ में पूरे प्रोसेस करने हैं, ठीक है, तो आप कैसे इस पेज पे आओगे, राइट? ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में। तो आप सिंपली ईपीएफओ का जो वेबसाइट है, आप सिंपल वहाँ पे लिख दोगे ईपीएफओ, तो आपको जो फर्स्ट लिंक या ऐसा कुछ आएगा उस पर क्लिक करोगे ना तो यू विल गेट दिस ऑप्शन, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप डायरेक्ट अगर आपको मेल नहीं आया तो आप इस लिंक पे आ नहीं सकते, इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मेंबर ई सेवा ऐसा करके आ रहा है, राइट? तो यहाँ पे अगर तो आपको यूएएन नंबर पहले से पता है या आपकी कंपनी ने आपको प्रोवाइड कर रखा है और आपको सिर्फ उसे एक्टिवेट करना है, ठीक है, तो आप सिंपली जो यहाँ पे फील्ड है ना यूएएन वाला, आप यहाँ पे अपना यूएएन नंबर डालोगे एंड देन यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट करना है या आपको पहले से पता है कि पासवर्ड क्या, मतलब अगर आपने पहले से यूएएन अपना जनरेट कर लिया, आप जानते हो, तो उस केस में आप पासवर्ड डालोगे और जो कैप्चा आपको ऊपर में दिख रहा है ना यहाँ पे, वो कैप्चा आप फिल करोगे, ठीक है, और फिर आप साइन इन करोगे, तो फिर वो एक प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आपका यूएएन नंबर क्या है और पहले आपको जानना है कि आपका यूएएन नंबर क्या है, बिकॉज एक्टिवेट करने के लिए यू नीड टू नो फर्स्ट, राइट? तो उसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है। हियर यू कैन सी द ऑप्शन। फर्स्ट तो आपको दिख रहा होगा एक्टिवेट यूएएन, अगर आप जानते हो तो आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे एक्टिवेट यूएएन और फिर आगे के प्रोसेस करोगे। और अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ क्लिक करोगे नो योर यूएएन, ठीक है। इसके दो वेज हैं, आप कैसे जान सकते हो। इसके लिए यू नीड टू गेट रेडी विद योर आधार कार्ड, मतलब आपके पास हैंडी होना चाहिए, आपको आधार नंबर की ज़रूरत पड़ेगी और ये आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए, तो आप इजीली यूएएन नंबर ले सकते हो। तो लेट्स सी द फर्दर प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे जो आपका रजिस्टर्ड है और फिर यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिख रहा है वो डाल के आप रिक्वेस्ट ओटीपी करोगे, ठीक है। जब आप रिक्वेस्ट ओटीपी करोगे फिर आपको ओटीपी डालना है। अच्छा ठीक है, प्रोसेस देख ही लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालोगे, फिर आप नीचे में कैप्चा डालोगे और जैसे ही आप रिक्वेस्ट ओटीपी करोगे ना, आपको एक इंटरफेस मतलब इसी तरीके का आएगा जहाँ पे एक फील्ड और ऐड हो जाएगा ओटीपी का, ठीक है। तो आपके जो मोबाइल नंबर है वहाँ पे ओटीपी आपको रिसीव होगी, आप वो ओटीपी वहाँ फिल करोगे एंड मैंने ऑलरेडी अपना यूएएन ले रखा है तो मैं वापस से नहीं लॉगिन कर रही। और ऑल्सो कि मैं यहाँ पे हाइड कर नहीं पाऊँगी क्योंकि कोई सॉफ्टवेयर भी मैंने मतलब मेरे इसमें इंस्टॉल नहीं है, तो नंबर एंड ऑल डालना फिर दिस विल नॉट बी गुड ना, मतलब ये सिक्योरिटी पर्पज़ से अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकती, बट आई कैन एटलीस्ट शो यू द स्टेप्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओगे, मोबाइल नंबर डालोगे, कैप्चा डालोगे, उसके बाद आपको ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, फिर उस ओटीपी को आप करके वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आप वो डालोगे और फिर आपको कुछ और कॉलम्स दिखेंगे जो आपको फिल करने हैं, लाइक आपका DOB, योर मोबाइल नंबर, नेम एंड देन दो ऑप्शन होंगे आपके पास, या तो आप आधार कार्ड का कर सकते हो, आइदर यू कैन गो विद आधार कार्ड और विद पैन कार्ड, ठीक है। तो अब जो भी सिलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल आपने आधार कार्ड सिलेक्ट करा, आधार कार्ड लोगे, आधार कार्ड का नंबर डालोगे एंड कैप्चा डालोगे, साइन इन करोगे और उसके बाद फिर आपको ओटीपी जाएगा, फिर आपको ओटीपी वैलिडेट करना होगा, सिंपल, एंड आप फिर ओके पे क्लिक कर दोगे। तो आपको यहाँ पे
आ जाएगा योर UAN नंबर इज़ दिस करके, तो आपको दिख जाएगा आपका UAN, आप उसको कॉपी करके अपने पास आराम से रख सकते हैं। तो इस तरह से यू आर एबल टू नो कि आपको कैसे UAN नंबर मिला। अब नेक्स्ट चीज़ कि यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक कर दिया मेंबर, एंड मैं यहाँ पे आ गई, मतलब अपने आउटलुक वाले से, जहाँ पे मुझे बार बार आ रहा था कॉग्निजेंट की तरफ से टू फिल योर EPFO प्रोसेस कंप्लीट, डू इट एज सुन एज पॉसिबल लाइक दैट। ये आपको रोज़ आएगा, इवन आपने कर रखा है ना फिर भी आएगा। एंड नीचे में लिखा रहता है नोट में कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन प्लीज़ इग्नोर, बट इफ़ यू हैव नॉट डन देन डू इट। तो ये सबके लिए आता है, दोज हु आर वर्किंग, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना UAN नंबर जान सकते हो। अब अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे ओपन करना है तो आप मैं नेक्स्ट विंडो ओपन कर लेती हूँ, आई मीन नेक्स्ट टैब ओपन कर लेती हूँ। वेट अ मिनट, क्योंकि ये हाथ से पकड़ के दिखा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा गैप लेना पड़ रहा है, मतलब ओपन करने के लिए। ओके, आई थिंक ये विजिबल है। तो अगर मैंने यहाँ पे EPFO एंड देन इंडिया लिखा, EPFO इंडिया, ओके, इंटर, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू क्लिक हियर। जैसे ही क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आप सर्विसेज में जाओगे, यहाँ पे फॉर एम्प्लॉयज़ नॉट एम्प्लॉयर्स, फॉर एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ओके, सो जैसे मैंने सर्विसेज में फॉर एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करा, मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी तो मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है मेंबर UAN ऑनलाइन सर्विसेज OCS OTCP। इस पर क्लिक करती हूँ तो मैं इसी तरीके के पेज पे आ गई, राइट, दिस वन। और यही पेज हमारा ओपन हुआ था जब मैंने डायरेक्ट उस लिंक से किया था। सी, अभी मैं आगे बढ़ गई तो ये अभी ऐसा पेज है, राइट। ये मेंबर वाला ऑप्शन ये आ गया था, और यहाँ पे हम लोग UAN एंड पासवर्ड डाल के साइन इन कर सकते हैं। और फिर बस, और अगर अब आपको पता चल गया कि अच्छा आप UAN कैसे ले सकते हो, नेक्स्ट है आपका एक्टिवेट UAN, उसको एक्टिवेट भी करना होगा, है ना। तो आप एक्टिवेट UAN पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आएगा इंटरफेस। तो जहाँ पे आपको दिख रहा है UAN नंबर डालने के लिए, वहाँ UAN नंबर डालोगे, उसके बाद आधार नंबर डालोगे। मेंबर आईडी नहीं डालनी है आपको, वो वैसे भी डिसेबल है वहाँ पे। आपको अपने नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर मेक श्योर कि ये आपका रजिस्टर्ड और लिंक्ड हो आपके आधार कार्ड से, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप कैप्चा डालोगे, यहाँ पे जो बॉक्स है इसको आप टिक करोगे, ठीक है। ये जो कंसेंट है इसको टिक करना है। गेट ऑथराइजेशन पिन पे क्लिक करना है, रीसेट पे नहीं करना है बिकॉज हम लोग कोई पासवर्ड या कुछ रीसेट नहीं कर रहे। तो आप सारे फील्ड्स को यहाँ पे पहले फिल करोगे एक्टिवेट करने के लिए UAN, एंड फिर गेट ऑथराइजेशन पे क्लिक करोगे। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपको एक OTP आएगा, आपको फिर से उसको वैलिडेट करना होगा और फिर आपका UAN एक्टिवेट हो जाएगा। आपके मोबाइल, आपके इनबॉक्स में मैसेज आ जाएगा आपको कि योर UAN नंबर इज़ दिस एंड इट इज़ एक्टिवेटेड। अच्छा हाँ, एक्टिवेट करने से पहले जैसे आपने नो UAN पे जाके अपना UAN नंबर लिया कि अच्छा ये आपका UAN नंबर है, तो उसके बाद आपके मोबाइल पे आ जाता है कि दिस इज़ योर UAN नंबर, और पासवर्ड आपको चेंज करना होगा क्योंकि जो आपके ईमेल पे एंड आपके मोबाइल नंबर मतलब मैसेज में आपको पासवर्ड एक ऑटोमेटिक वाला पासवर्ड आपको जनरेट करके दे दिया जाता है। फिर आप साइन इन करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ऑब्वियसली पासवर्ड आपको चेंज ही कर लेना चाहिए। तो फिर अब जो आपके पास पासवर्ड है वो आपने क्रिएट करा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है लाइक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बीइंग इंटर्ड शुड बी एज पर EPFO रिकॉर्ड्स। EPFO रिकॉर्ड्स के ही अकॉर्डिंग करना है। अच्छा हाँ, ये बात है यहाँ पे क्यों लिखी हुई है, क्योंकि अगर जब आप UAN नंबर ले रहे होगे वहाँ पे आपको मैंने बताया ऑप्शन आएगा आधार कार्ड का या पैन कार्ड का। तो हो सकता है अगर आपने कोई पहले से इसमें कुछ प्रोसेस किया है, PF में अकाउंट ओपन करते वक्त आपने आधार कार्ड के डिटेल्स डाले हैं, तो आपको वहाँ पे UAN लेने के लिए आधार कार्ड का डालोगे। अगर आपने पैन कार्ड का डिटेल्स डाला था तो फिर आप पैन कार्ड का नंबर डालोगे। तो आई थिंक ये उस कंसर्न में लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब रिलेटेड टू एंड इट शुड बी इंटर्ड एज अ EPFO रिकॉर्ड्स। तो UAN ऑफ मेंबर्स आधार नेम,
नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब वैसे ही अवेलेबल होना चाहिए जो आपके EPFO पोर्टल में है, आई मीन रिकॉर्ड्स में है। अब ऑब्वियसली ये वही होगा ना, क्योंकि हर जगह तो सेम होगा। आपका आधार नंबर या आपका नेम या डेट ऑफ बर्थ हर जगह अलग तो हो नहीं सकता, ये वैलिड ही नहीं है, तो ये तो हर जगह सेम ही होगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा कि आप UAN पहली बात ले कैसे सकते हो, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हो, और अगर आप भूल गए UAN नंबर तो आप कैसे उसको वापस से ले सकते हो, है ना। आप पासवर्ड भी वापस से, मान लो आप पासवर्ड भूल गए तो आप पासवर्ड भी वापस से क्रिएट कर सकते हो, सेम इसी पोर्टल पे आकर के, इसी लिंक, आई मीन ये वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें फर्स्ट स्टेप पता चल गया कि UAN नंबर क्या है। एक्टिवेट अगर आपने नहीं करा था तो आप कर सकते हो। तो EPFO प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले हमारा ज़रूरी है UAN नंबर जानना। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी ये प्रोसेस कंप्लीट कर रखा है, और ऑल्सो मैं हैंड से मोबाइल को पकड़ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी बस इस डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है। आपको बस ध्यान से देखना है एंड सिंपली फॉलो करते जाना है। ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस फ्लो है फॉर फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन फॉर्म बाय मेंबर ऑन EPF पोर्टल, ये आप देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि आप अपना UAN नंबर यहाँ पे डालोगे, मेरी कर्सर पे ध्यान देना बस, और फिर पासवर्ड डालोगे, कैप्चा डाल के साइन इन कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, वो सारी चीज़। आफ्टर साइनिंग इन, आपने साइन इन कर लिया तो इस तरीके का कुछ स्क्रीन आएगा इंटरफेस, ये ऐसा UAN कार्ड अकाउंट सेटिंग, और इस तरफ आपको मेंबर प्रोफाइल दिखेगा जहाँ पे आपका UAN नंबर, नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर। अगर आप आधार डाले हो या पैन कार्ड, अगर आपने पैन कार्ड नहीं डाला है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके का ये सब कुछ आएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल, ओके। उसके बाद आपको करना क्या है, फर्स्ट क्लिक ऑन टैब, ये मैनेज वाले पे, मैनेज, यहाँ पे यू कैन सी होम, व्यू, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विसेज, ये सारे टैब्स हैं ना, आपको मैनेज पे क्लिक करना है। उस वहाँ पे क्लिक करोगे फिर आपको ई-नॉमिनेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो यू हैव टू क्लिक हियर। जैसे ही आपने लॉगिन करा ऊपर, वहाँ पे करने के बाद, मतलब ये वाला पेज आया था ना, यहाँ पे UAN इस तरह से शो होता रहेगा आपको, तो आपको यहाँ क्लिक करना है इस मैनेज पे। ये तो ऑलरेडी कर रखा है इन्होंने, इसलिए इनको दिख रहा है यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करोगे फिर आपको ऐसा दिखेगा, एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, नाउ यू हैव टू इंटर योर परमानेंट एंड करेंट एड्रेस, देन आफ्टर सेव इट। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर आपको इस तरीके की कुछ इंटरफेस आएगी, जहाँ पे UAN नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, योर फादर्स और हस्बैंड्स नेम, योर मैरिटल स्टेटस। तो मैंने जब ओपन करा था ना, तो मेरा यहाँ पे हाँ, मेरा ये सब अपडेटेड नहीं था, परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस, ये सब नहीं था। और मेरे केस में एक और चीज़ भी थी, हाँ, एजुकेशन वाला पार्ट यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा वैसे, बट मैंने जब करा था तो मुझे एक और ऑप्शन दिखा था, लाइक व्हाट इज़ योर एजुकेशन, तो वहाँ पे बस ग्रेजुएट लिखा हुआ था। बट मैंने बताया जैसे कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, तो मैंने उसको अपडेट करा, एडिट पे जाके मैंने वहाँ वो अपडेट किया, मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड डाला, यहाँ फीमेल डाला, एंड फिर अपना करेंट एड्रेस डाला, वही सेम है मेरा एज परमानेंट एड्रेस, तो इस बॉक्स पे मैंने टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको आएगी, मेरे केस में तो ऐसा कुछ था नहीं, बस फिर आपको सेव पे क्लिक करना है, तो आपका एड्रेस एंड जो भी डिटेल्स आपने अभी फिल करी ये सारा अपडेट हो जाएगा, ओके। ये करने के बाद आफ्टर सेविंग बिलो मेंशन्ड स्क्रीन विल बी डिस्प्ले एंड यू विल हैव टू क्लिक ऑन येस ऑप्शन फॉर एडिंग नॉमिनी। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो यहाँ पे नहीं दी हुई है बट मैं बता दूँ कि जब आप सेव पे क्लिक करोगे सेव होगा, बट अगर आपने ऑलरेडी आपका ये सब कुछ सेव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपका प्रोफाइल पिक्चर अपडेट नहीं यहाँ पे एडेड है तो आगे बढ़ने के लिए आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर डालना पड़ेगा, और कुछ डायमेंशन वहाँ पे दिए होते हैं नॉर्मली,
तो बस उस डायमेंशन में उतने कितने अंदर कुछ केबी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आप देख लोगे अगर आप डायमेंशन पिक्सल कम कर दोगे तो वो उसके अंदर में उस केबी में आ ही जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी दिखाए हैं कि आप कैसे पिक्सल कम कर सकते हो, और केबी ज़्यादा एमबी में आ रहा है तो कैसे आप केबी में रिड्यूस कर सकते हो और फिर अपलोड कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे भी आप अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करोगे पहले, तब आप एबल होगे आगे प्रोसीड करने की। ठीक है, ओके। अब आगे जाओगे जब आप, तो आपको इस तरह की कुछ इंटरफेस दिखेगी। यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रोफाइल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, तो आपका भी कुछ इस तरह से दिखेगा। और हर फेस पे आपको आपका यूएएन नंबर यहाँ पे इस तरह से दिखता रहेगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये तो नॉमिनी के लिए ही हो रहा है ना, आप नॉमिनी यहाँ पे ऐड करोगे तो हैविंग फैमिली डिक्लेरेशन देनी है आपको। 1 मिनट, फोकस होना चाहिए ज़्यादा अच्छे से। हाँ, हैविंग फैमिली, तो ऑब्वियसली आप येस पे क्लिक करोगे तो ही आप आगे प्रोसीड करोगे। अब फैमिली मतलब यहाँ पे सिबलिंग्स को इन लोगों ने कंसीडर नहीं करा ईपीएफओ में, डोंट नो व्हाई, ऑब्वियसली दे आर फैमिली, बट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आपके सिबलिंग्स फ्रेंड्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ओनली योर फादर मदर एंड हस्बैंड और वाइफ और सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर सन, इन लॉज डिटेल्स, मतलब इस तरीके की चीज़ें, इस ये जो फैमिलीज़ में है वो सब कंसिडर होंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पे आप यस करोगे, देन इस तरह की कुछ इंटरफेस आएगी। ठीक है, हैविंग फैमिली यस किया, ऐड फैमिली डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको नेम डालना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी मॉम का डाला, तो मेरी अम्मी का जो नाम है मैंने यहाँ पे वो डाला, फिर मैंने यहाँ पे उनके डेट ऑफ बर्थ को डाला, क्योंकि आपके नॉमिनी आप ऐड कर रहे हो तो नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालोगे और यहाँ पे नॉमिनी का नेम डालोगे। यहाँ पे रिलेशन क्या है आपका उनके साथ, अगर माँ है तो मदर डालोगे, अगर आप फादर का डाल रहे हो तो फादर डालोगे, और आप एक से ज़्यादा नॉमिनी भी डाल सकते हो, है ना। ओके, बस आपको ऐड डिटेल्स पे करते जाना है। फिर यहाँ पे एड्रेस डालोगे, और अब ये जो गार्जियन वाला ऑप्शन है ये नॉर्मली डिसेबल ही होगा, क्योंकि हम लोग अंडर 18 तो है नहीं, है ना, तो इसलिए ये डिसेबल होगा। और एक ऑप्शन था यहाँ पे पिक्चर, यस यहाँ पे नहीं दिख रहा, आई थिंक ये बहुत पुराना है, मैंने अभी किया है हाल फिलहाल, तो मेरा अपडेटेड था, और चेंजेस हमेशा आते रहते हैं ईपीएफओ पोर्टल पे। तो एक और ऑप्शन आपको दिखेगा जहाँ पे आपको आपके नॉमिनी की पिक्चर अपलोड करनी होगी सेम डायमेंशन में। ठीक है, सेम केबी के अंडर में होना चाहिए, आई थिंक 10 केबी या कुछ, तो उसी में आपको डालना है। तो यहाँ पे वो पिक्चर आपको शो होगा जब आप डाल दोगे। तो एक ये चीज़ यहाँ मिसिंग था, इसलिए मैंने बता दिया। वो करोगे, फिर आप आगे जाओगे, वो कर दिया आपने। अब अगर आपको एक ही नॉमिनी डालना है देन इट इज़ फाइन, आप सेव फैमिली डिटेल्स पे कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं आप एक और नॉमिनी ऐड करो, तो आप ऐड रो पे क्लिक करोगे तो वापस से इसी तरीके का दिखेगा आपको ये जो इंटरफेस दिखा है ऐड रो पे, और सेम डिटेल्स, मतलब जो आपको दूसरे नॉमिनी का डालना है, फॉर एग्जांपल ऑफ योर फादर, तो आप अपने फादर का डिटेल्स यहाँ पे सिमिलर वे में फिल करोगे, और फिर सेव फैमिली डिटेल्स पे क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके जो डिटेल्स आपने फिल करा वो सारा सेव हो जाएगा, एंड देन आपको ये इंस्ट्रक्शंस कुछ फॉलो करना है जो डार्क रेड इंक में शो हो रहा है। तो लेट्स सी, इस हाँ, सेव ईपीएफ नॉमिनेशन, यहाँ पे जो आपने फिल करा ना वो आपको इस तरह से विजिबल होगा। अब आपको ये जो बॉक्स है, मेरे कर्सर पे ध्यान देना, एंड ऑल्सो ये रेड इंक से जो लिखा हुआ है इस पर जो एरो मार्क करके है, यहाँ पे आप टिक करोगे, आपको दिखेगा कि अच्छा ये नेम जो आपने डाला था वही है, डेट ऑफ बर्थ है, रिलेशन है, एड्रेस क्या है वो, पिक्चर भी दिखेगा, एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ गार्जियन, तो गार्जियन तो यहाँ पे कुछ डाला नहीं था तो ये ब्लैंक होगा। अब ये एक चीज़ है
कि टाइप द परसेंट यू वांट गिव शेयर टू योर नॉमिनी, आप कितना परसेंट देना चाहते हो अपने पीएफ का, अपने प्रोविडेंट फंड का उस नॉमिनी को। तो अगर आप एक ही डाल रहे हो, ये आपके ऊपर है, अगर आप एक ही डाल रहे हो तो 100%, जैसे मैंने एक डाला तो मैंने 100% दे दिया। बट अगर आप एक से ज़्यादा डाल रहे हो, मान लो आप 2 नॉमिनी डाल रहे हो, तो आप 50-50 कर सकते हो, 50% वन नॉमिनी, 50% सेकेंड नॉमिनी। ठीक है, तो ये परसेंट इतना डालना है यहाँ पे। उसके बाद आपको सेव ईपीएफ नॉमिनेशन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो आपने डिटेल्स डाला वो आपका सेव हो जाएगा। आफ्टर दैट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंशन इन द रेड इंक ऑन द बिलो स्क्रीनशॉट। ओके, अब आपका ईपीएफ डिटेल्स सेव्ड हो गया है। तो आपको जब सेव हो जाएगा ना, तब इस तरीके का दिखेगा आपको, यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ पे जो जैसे कि आप आज की डेट में करोगे तो आज का डेट शो होगा, नॉमिनेशन एंट्री टाइम, यहाँ से आप व्यू कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया है देखने के बाद, तो आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब ना इफ़ अगर आपको पता चल गया कि नहीं मैंने जो भी डाला है वो सब बिल्कुल सही है, आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे साइन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये ई साइन बटन है, यहाँ डिजिटल सिग्नेचर होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से सिंपली डिलीट भी कर सकते हो। अब एक और चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, वो क्या है, जैसे कि ये तो ईपीएफ का है। ठीक है, आपने एक यहाँ पे एक रो ऐड करा और डायरेक्ट आपको ये ऑप्शन आ गया। लेकिन जब मैं कर रही थी ना, तो मुझे एक और ऑप्शन दिखा, वो ईपीएस का था, पेंशन वाला। तो उसके लिए भी सेम वैसे ही आप नॉमिनेशन वाला डिटेल्स डालोगे, कुछ भी चेंज नहीं है, बस ईपीएफ की जगह पे ईपीएस नॉमिनेशन रहेगा। यहाँ ईपीएफ है ना, इसकी जगह पे ईपीएस रहेगा और सारे वेज सेम है, बस आपको क्लिक करना है और फिर उसमें भी ऐसे ही दिखेगा। व्यू करके आप एडिट कर सकते हो। अगर आप श्योर हो तो आप ई साइन पे क्लिक करोगे। अब आपने ई साइन पर क्लिक किया तो आपको कुछ इस तरह की इंटरफेस दिखेगी। ओके, तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अबव बटन एंड बिलो बटन। बिलो बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ओटीपी आएगा। ओटीपी आपके उसी नंबर पे आएगा जिससे आपने यूएएन में डाला था। तो बाय प्रेसिंग जनरेट ओटीपी बटन, I hereby give my consent for using eKYC services data from Aadhaar for the purpose of signing selected document and generating digital signature certificate which is commonly called as DSC। ठीक है, तो ये जो OTP आपका आधार कार्ड, यूएएन सब तो एक ही नंबर से लिंक्ड होगा ना, तो आपके उसी नंबर पे OTP आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करोगे, जनरेट OTP पे करोगे, तो आपके आधार लिंक्ड नंबर पे OTP आएगा। फिर उसके बाद आपको OTP डालना होगा यहाँ पे। जैसे आप जनरेट करोगे OTP आपके नंबर पे आ जाएगा। डिजिटल साइनिंग ऑफ डिक्लेरेशन। तो अब यहाँ पे आपको जो आपके मोबाइल में OTP आया है वो यहाँ डालोगे। ठीक है, जो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा। उसके बाद साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे हेयर। जैसे ही साइन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे आपको इस तरह का आ जाएगा कुछ। फाइनली बिलो मेंशन स्क्रीन विल बी डिस्प्ले दैट इंडिकेट्स दैट योर ई नॉमिनेशन हैज़ बीन ई साइंड सक्सेसफुली। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब कर रही थी ना तो मुझे एक कन्फ्यूज़न हो गया था। वो क्या हुआ था कि मैंने जब OTP डाला वहाँ पे साइन इन, ये अपडेटेड वर्ज़न नहीं मुझे दिख रहा, ये ओल्ड वर्ज़न है, इसलिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ना मिसिंग है। तो मतलब मुझे आधार डिटेल्स, हाँ नंबर जो यहाँ डालना था, अच्छा ये जो जनरेट OTP है और यहाँ पे आधार नंबर डालना था, तो मैंने ना अब मुझे लगा कि नॉमिनी का मैं कर रही हूँ ना, तो मैंने नॉमिनी का डाल दिया। बट नहीं, आपने नॉमिनी डिटेल्स डाल के तो ऑलरेडी सेव कर रखा है ना, लेकिन अब साइन तो करना है, तो वो साइन तो आप कर रहे हो बिकॉज फॉर्म तो आप फिल कर रहे हो, आपके नॉमिनीज फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको वो नंबर देना है और वो आधार कार्ड नंबर होना चाहिए जो आपका है। वो देने के बाद जो OTP है वो आपके नंबर पे आएगा। देन ठीक है, तो अगर ये वैलिडेट हो जाता है कि आपने जो डाला है वो सही है, तो फिर सिंपल आ जाएगा कि ओके योर ई साइंड हैज़ बीन सक्सेसफुली डन। नहीं तो एरर आएगा कि ये प्रॉपरली डन नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको भी आप
3 डॉट और 2, मतलब वो ना रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा, बट डॉट डॉट सा दिखेगा, तो सेकंड वाले पे आपको क्लिक करना है। ओके, आई विश कि मैं आपको वो चीज़ दिखा पाती, बट क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट आई कैन से, तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो आप बस उस डॉट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि अच्छा ये एरर इस वजह से था। तो आप वापस से यहाँ पे दोबारा क्लिक करोगे, बैक जाना। अगर मान लो एरर आ जाता है, वैलिडेट नहीं हो पाया आपका OTP सक्सेसफुली, उस केस में मैं बता रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार स्मूथली हो जाएगा जैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं। कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ ना कुछ रीज़न्स की वजह से, राइट। तो आप वापस से ई साइन पे क्लिक करोगे एंड देन दोबारा, अब आपको पता चल गया कि अच्छा आपको आपका आधार नंबर जो देना है वो आपका वाला देना है, क्योंकि आपको साइन करना है, OTP आपके नंबर पे आएगा। तो फिर आप ऑथेंटिकेटेड OTP डालोगे और फिर साइन डॉक्यूमेंट पे करोगे, इस बार सही है तो आपका यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा कि नॉमिनेशन रिक्वेस्ट ई साइंड सक्सेसफुली। फिर आप ओके पे क्लिक करोगे, दैट्स इट। नाउ यू कैन व्यू योर नॉमिनी डिटेल्स बाय क्लिक ऑन व्यू टैब। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि कुछ टैब्स हैं, होम, व्यू, मैनेज अकाउंट, इस तरह से। तो आप व्यू पे क्लिक करो, यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे ही साइन इन होगा ना आपको वैसे ही दिख जाएगा। पहले ये एंट्री नहीं आएगी, बट अब आपको दिखेगी नॉमिनेशन टाइम और ये व्यू। यहाँ पे बस 2 ही ऑप्शन दिख रहा है, बट मैंने जब करा था तो मुझे फुल डिटेल्स दिखा था। नॉमिनेशन टाइम भी था, नॉमिनी का नेम भी था, एंड देन नॉमिनीज एड्रेस, सारे डिटेल्स थे जो भी हमने डाला। फिर आप उसको आराम से व्यू कर सकते हो। So you can just view your nomination detail by click here, and the PDF will be download in which nomination details will be mentioned in form 2। ठीक है, अब आप व्यू तो कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही व्यू करके क्या फ़ायदा, आपको प्रूफ के लिए आप डाउनलोड भी कर ही लेना चाहिए। तो ये आप डाउनलोड कर लोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे ना आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन दिखेगा। यू कैन सिंपली डाउनलोड योर सक्सेसफुली डन फॉर्म। ठीक है, तो ये जो है ये फॉर्म 2-1 ऐसा करके कुछ नहीं आया, ये ओल्ड है इसलिए ऐसा दिख रहा है। मैंने जब किया तो मुझे यहाँ पे सारे डिटेल्स दिखे, मैंने सिंपली व्यू पे क्लिक करा और वहाँ पे मुझे डाउनलोड का ऑप्शन दिखा, तो मैंने PDF को डाउनलोड कर लिया, एज सिंपल एज डैट। तो बस आपको यहाँ पे जो फॉर्म आपने सक्सेसफुली फिल करा है, यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स दिखेंगे, UAN नंबर, नेम, फादर्स और हस्बैंड्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस एंड योर एजुकेशन, योर क्वालिफिकेशन आई मीन, और फिर पार्ट A पार्ट B करके रहेगा वहाँ पे। यहाँ पे अच्छा हाँ देखो, यहाँ पे भी EPS का दिख रहा है, बट जब ऊपर जो स्क्रीनशॉट मेंशन करा इन्होंने तो वहाँ पे EPS का नहीं था, इसलिए मैंने बता दिया एडिशनली। तो लेकिन यहाँ सक्सेसफुली फॉर्म में आई कैन सी EPS ऑप्शन ऑल्सो। तो EPF पार्ट A में दिखेगा जो आपने प्रोविडेंट फंड के लिए डाला, EPS आपके पेंशन के लिए है। तो आप सेम नॉमिनी को भी डाल सकते हो और आप डिफरेंट भी डाल सकते हो सकता है आपका ये भी कन्फ्यूज़न या डाउट हो कि हमने जो एक नॉमिनी डाला है EPF के लिए, क्या हम EPS में डाल सकते हैं या नहीं। तो ऑब्वियसली यू कैन गिव द सेम नॉमिनी डिटेल्स ऑल्सो। तो यस, यही था हमारा EPFO का प्रोसेस, जो कि हमें हर दिन जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे आपको ये डिटेल्स आपके मेल में आते रहेंगे आपकी कंपनी की तरफ से। ये दिस इज़ नॉट फिक्स्ड फॉर कॉग्निजेंट ओनली, दिस इज़ मैंडेटरी एंड यूज़फुल फॉर ऑल द वर्किंग पर्सन, बट स्पेशली मैंने ये कॉग्निजेंट के लिए बताया क्योंकि I am working there and also there are many viewers who must be viewing this time. You are employed or you are going to work anything. तो अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है कि you need to fill this EPFO portal और आपको ये पूरा complete करना है, तो make sure your Aadhaar number should be there with you, your मोबाइल नंबर शुड बी लिंक्ड एंड रजिस्टर्ड विद योर आधार एंड UAN। तो सारी डिटेल्स आपके पास होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आप स्मूथली ये सारे प्रोसेस को कर सकते हो। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू ऑल, एंड इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स तो प्लीज़ let me know in the comment section and what you want to know in next video, just tell me। and हाँ, मैंने एक पोल करा था जहाँ पे मैंने पूछा था कि what you want to see in the next video, तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा वोट्स मिले थे, मतलब जितने भी वोट्स मिले थे उनमें से ज़्यादा मिले थे कि आप पहले ये, और एक था ऑप्शन ऑल 1 by 1, तो उसमें ज़्यादा मिले। तो ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने जो भी सोचा है मैं 1 by 1 बनाती हूँ। तो पहले तो मैंने ये डाल दिया, व्हाट आर द हायरार्की ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ योर
पोस्ट्स इन कॉग्निजेंट, मतलब जैसे आप ज्वाइन करते हो मान लो प्रोग्रामर ट्रेनिंग पे, तो फिर आगे प्रमोट होकर ट्रेनिंग के बाद आपको कौन सी पोस्ट मिलती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कौन सी मिलती है, प्रोजेक्ट एलोकेट होने के बाद कौन सा मिलता है, ट्रेनी रहते हो या ट्रेनी नहीं रहते हो, मतलब जो भी प्रमोशन होता है आपके डेजिग्नेशन का, उसका हायरार्की क्या है ऑर्डर वाइज, वो मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया, जिसको मैंने 59 सेकेंड के अंदर में ही डाला है, जो कि मेरे लिए बहुत टफ़ है क्योंकि मैं बोलती हूँ तो मेरा लेंदी हो जाता है, शॉर्ट्स में डालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट स्टिल आई ट्राई एंड आई हैव अपलोडेड दैट वीडियो. तो इफ़ यू हैव मिस्ड you can just check on my channel, and that's all about this video. Thank you.